بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بھٹی۔ پاکستان سے اہم ترین خبریں ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے سیلاب نے اس وقت ماضی کی نسبت بہت زیادہ تباہ کاریاں کرائی، لیکن چند حکمران امداد کرنے کی بجائے خصوصیشن پر متوجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس وقت چناب اور ستلج میں پانی کی سطح بڑھتی جا رہی ہے۔ بھارت میں ہونے والی تباہ کاریوں سے انہوں نے پانی چھوڑ دیا ہے اور سینکڑوں دیہات اور لاکھوں لوگ زیر آب آ چکے ہیں۔ انہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ حکومت جتنی مدد کر رہی ہے ٹھیک ہے، کچھ بیوروکریسی اس میں مال ہڑپ کرنے بھی مبینہ شکایات آ رہی ہیں، لیکن ہم سب پاکستانیوں کو ان کی مدد کرنا ہوگی۔ اس حکومت کا سیلابی علاقے تمام علاقوں پر پہنچنا بظاہر مشکل نظر آ رہا ہے، اس لیے فلاحی تنظیمیں عام شہریوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ناظرین، دوسری طرف پاکستان میں عرصہ دراز سے انویسٹمنٹ کوئی نہیں آ رہی، گروتھ ریٹ نیچے سے نیچے چلا جا رہا ہے، لیکن چند خاندان ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ حکمران ایک دوسرے پر کرپشن کی حکمرانوں پر اربوں خربوں روپے کی الزامات لگا رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے پاکستان میں آئین اور قانون کو نظر انداز کر دیا گیا۔ دوسری طرف بانی پی ٹی آئی عمران خان کی توشہ خانہ 2 کیس میں آج اڈیالہ جیل میں پیشی ہوئی، جس پر ان کی بہن اس کیس کی سماعت 8 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ علیمہ خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو بتایا گیا کہ ان کے صحت کے بارے میں، تو انہوں نے کان میں تکلیف تھی اور دانت میں جس کا اب علاج ہو رہا ہے، انہوں نے کہا تمام پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے محمود ہاشمی اور اختر مینگل کی کال پر 8 ستمبر کو ملک بھر میں احتجاجی کال کرے۔ انہوں نے کہا موجودہ حکمران بوجھ بن چکے ہیں، ان سے نجات دلانا ضروری ہے۔ نہ اس سے پہلے کہ پاکستان پی ٹی وی، پاکستان ٹیلی ویژن آج تک زندگی میں کبھی ان کی تنخواہیں لیٹ نہیں ہوئی تھی۔ 3 سے 5 ماہ تنخواہیں لیٹ کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان سے گزارش کی جا رہی ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں جہاں ایک وقت کی روٹی کھانا مشکل سے ناممکن ہو چکا ہے، وہاں 3 ماہ کی غریب ملازمین کی تنخواہیں روکنا اور 30 لاکھ پر بندے رکھنا ناانصافی ہے۔ ان کی تنخواہیں ادا کی جائیں تاکہ مہنگائی کے دور میں اپنا وہ کچن چلا سکیں رزق حلال سے۔ پی ٹی وی کے ملازمین سخت احتجاج کیا، اس سلسلے میں پورے ملک سے صحافی سراپا احتجاج ہے۔ ناظرین، اس وقت ملتان، باول نگر، قصور، ناروال، حافظ آباد، مظفر بر، سیالکوٹ اور دیگر علاقوں میں صبح کی تباہ کاریاں، اتنے دردناک مناظر سامنے آ رہے ہیں۔ افسوس کہ ہمارے پولیٹیشین جاتے ہیں اور جا کر فوٹو سیشن کرا کر آ جاتے ہیں۔ خدا کے لیے جو محفوظ گاہیں بنائی ہیں وہاں میڈیا کو لے جایا جائے، وہاں ان کی حالت بتائی جائے، اور ہر شخص چاہے وہ کسی سیاسی جماعت سے ہے، جب تک فلاحی تنظیمیں مدد نہیں کریں گی اتنی بڑی آفت سے نہیں کیا جا سکتا۔ جناب کا ریلا دوسری طرف اطہر منیلا سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر منیلا کے خطاب نے حکومت کی پھر بجلی گرا دی ہے۔ اس پر ایک وفاقی وزیر نے چیخ اٹھے ہیں، جو خود کہہ رہے ہیں کہ ملک میں ہائیبریڈ نظام ہے۔ ہائیبریڈ نظام ہوتا ہے دوغلا نظام، یعنی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہائیبریڈ نظام کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ بات تسلیم کرنا ملک کے آئین سے بغاوت کرنے کے مترادف کیا گیا ہائیبریڈ نظام ہے۔ دیکھیں، ہمارا دشمن بھارت ہے، جسے پاک فوج نے 10 مئی کو شکست دی، ان پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ حکمرانوں کو چاہیے اکانومی کو بہتر کرے، گورننس بہتر کرے، اربوں خربوں روپے کی گندم سکینڈل ہو، چینی سکینڈل ہو، ٹیکس مافیا ہو، کرپشن ہو، پٹواری ہو، تھانے دار ہو، اربوں خربوں کی کرپشن ہے۔ وجہ ہے کہ ایلیٹ کلاس گریڈ 20-19 سے اوپر مراد دیتی ہے، اور عام سپاہی، حوالدار، کلرک، چھوٹے موٹے اداروں میں لوگ رول گئے ہیں۔ حکومت کی اس ناانصافیاں اور چوری کے مینڈیٹ سے آنے والی حکومت نے نہ صرف عوام کی مینڈیٹ کو چوری کیا، بلکہ 26ویں ترمیم کے بعد عدالتوں کو بھی بے توقیر کر دیا، میڈیا پر قدغن لگا دی، لیکن عوام کی نفرت بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ لاوا کسی روز پھٹے گا تو ان حکمرانوں کا اپنے عہدوں پر رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ ماضی میں بھی کوئی اچھی نہیں ہے۔ ناظرین، عمران خان کی حکومت میں بھی بہت ساری غلطیاں ہوئی، لیکن جس طریقے سے وہ جیل اب کاٹ رہے ہیں اور پی ٹی آئی 3 سال سے مختلف فساد یا ظلم زیادتی کا مقابلہ کریں، یہ بھی ایک مثال ہے۔ ہاں، اگر عمران خان کبھی باہر آتے ہیں، پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ توشہ خانہ القادر کیس اسلام آباد ہائی کورٹ اس لیے نہیں سن رہا کہ عمران خان کی ضمانت یقینی ہے، اگر سنتے ہیں تو وہ پہلے انہیں توشہ خانہ 2 میں سزا سنانا چاہتے ہیں، اسی لیے
जस्टिस बाबर स्टार और एजाज इसहाक के खत, मुल्क में होने वाली अदालतों की नाइंसाफियां और हाई सुप्रीम कोर्ट अतर मनीला का खत अगर गौर से पढ़े तो ऐसा लगता है मुल्क इस वक्त इंसाफ के बगैर चल रहा है, धक्केशाही से चल रहा है, गन पॉइंट पे चलाया जा रहा है, जोर जबरदस्ती से चलाया जा रहा है। खैर, हमें यकीन है दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इलेक्शन का बाइकाट क्या किया, फिर तो 500 वोट भी पड़ेगा तो नून लीग जीत जाएगी, मद्दे मुकाबल होगा ही नहीं, क्योंकि यही मुस्लिम लीग नून चाहती है कि रेफरी भी उनका हो, इनके मालक कोई कैंडिडेट भी ना हो, तमाशाई भी इनके हो, तालियां भी वो बजाएं, 5,000 वोट डालें। दूसरा, और पाकिस्तान लाहौर पंजाब में कोई सियासी जमात नहीं है, पीपल्स पार्टी तो अपनी सियासत खत्म कर चुकी है, नून लीग सिर्फ 5% रह गई है, बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। कभी नवाज शरीफ के दौर में किला होता था, लेकिन नवाज शरीफ की मजबूरियां, भाई को वजीर आज़म बनाना, बेटी को वजीर आला बनाने से सियासत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडरों के मुताबिक सियासत उनकी 5 दहाइयां पीछे चले गई है। अब आ जाते हैं अलीमा खां की। मीडिया ने अडयाला जेल में तोशां 2 के बाद अलीमा खां ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी पीटीआई को बताया गया कि सोशल मीडिया पर उनकी सेहत के बारे में मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं। बानी ने कहा कि कानों में इनके मसला था, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आंखों में तकलीफ के बारे में उन्होंने डॉक्टरों को ने दवाई दी, तजवीज़ की है। बानी ने कहा कि सेहत बिल्कुल ठीक है, इनको कोई शिकायत नहीं, वो इस जेल को एक लीडर की तरह काटेंगे, एक डीलर की तरह नहीं। बानी ने कहा सैलाब की तबाही पर अफसोस का इजहार किया है। बानी ने कहा कि सैलाब से लोगों की फसलें तबाह हुई हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि हम सब मिलकर सैलाबजदगान की मदद करना चाहिए। बानी ने अफगान फैमिलीज को जबरदस्ती बेदखली पर दुख का इजहार किया। बानी ने कहा अफगान हमारे भाई हैं, हमें वहां जलजला भी आया है। अलीमा खां की गुफ्तगू के दौरान किसी ने उन पर अंडा फेंका। इस तशद्दुद, जुल्म, ज्यादती से आप जुबानें बंद कर लेंगे, अपने लिए रास्ते हमवार कर लेंगे, अवाम में जाएं और अवाम पर गंदे आंडे फेंकेंगे। लेकिन खैर, ये लगड़ बगड़ चपचे खर्चों की कुछ ऐसी हालात होती हैं, जब कोई मैच हारता है तो रफ्फड़ डालना शुरू कर देता है, विकटें उखेड़ लेता है। यही है कि आपने तरीके इंसाफ से सारी जमातें मिलकर शिकस्त खा गई। अब मैं जानता नहीं कि इमरान खां बाहर आकर रिहा होकर अपनी मादी की गलती दोहराते या नहीं दोहराते, लेकिन फिलहाल बानी पीटीआई ने हुक्मरानों का सुकून छीन लिया है और ये बेयारो मददगार सिर्फ कठपुतली हुक्मरान बने हुए हैं। अलीमा खां ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि इन पर अंडा फेंक दिया है। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान शोर शराबा हुआ, हमें फिक्र नहीं हम पर कोई हमला करे, हमें पता है ये होगा। बानी ने कहा कि वजीरिस्तान ऑपरेशन बंद होना चाहिए। अलीमा खां ने कहा कि तरीके इंसाफ अख्तर मैंगल और महमूद हाशिद की काल पर 8 सितंबर की हड़ताल काल में भरपूर शिरकत करे। अख्तर मैंगल से मेरी तरफ से हमले की शोधा की तरफ से ताज़ियत की जाए। इमरान खान ने अलीमा खां का पैगाम पहुंचाया। इमरान खान ने कहा कि वजीरिस्तान बाद जोड़ ऑपरेशन फौरी रुकवाया जाए, ये हमारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ साजिश है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर फर्ज है कि अवाम के जानो माल की हिफाजत करे। बानी पीटीआई में 2 केस अडयाला जेल में हुआ है। समाअत के दौरान प्रिंसिपल अप्रेजर कस्टम सनाउल्लाह सईद और एडीसी जी हेडक्वार्टर अब्दुल्ला खान का बयान कलमबंद किया गया। मुकदमे में मजमूई तौर पर 13 गवाह हो गए। नाज़रीन, लगता है इमरान खान ने कहा है कि मेरे ऊपर और बुशरा बीबी पर, यानी कि उनकी अहलिया पर टार्चर किया जा रहा है, हमें ज़हनी अज़ियत दी जा रही है। ये हम पर जुल्म नहीं, अवाम पर जुल्म है, क्योंकि हमें खामोश करवाकर अवाम की आवाज़ बंद करना चाहते हैं। अतर मनीला ने क्या गलत कहा? क्या मुल्क में इंसाफ नहीं है? जुल्फ़िकार अली भट्टो को एक डिक्टेटर ने फांसी दी, लेकिन बज़ाहिर एक जमहूरिया, लेकिन खुद ख्वाजा आसफ इसे कहते हैं कि ये हाइब्रिड निज़ाम है, तो जमहूरियत तो गई चारा चरने। अब इमरान खां की बहन अलीमा खां ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, नाज़रीन इनकी मुख्तसर सी बात सुने। इसलिए रखा हुआ है यहाँ पे हमारे ऊपर टॉर्चर हो रहा है, हमारे पे टॉर्चर किया जा रहा है, क्योंकि ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है, क्योंकि हमारे बिल्कुल आइसोलेशन में रखा हुआ है बुशरा बीबी और इमरान खान को। और इसका क्या मकसद है? इमरान खान को किस लिए मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि इमरान खान जाए, लेकिन किस चीज के लिए तोड़ना चाह रहे हैं? क्योंकि इमरान खान के पीछे ये नहीं आ रहे, ये लोगों की आवाज बंद करना चाह रहे हैं। ये जो अवाम है, पहले 8 फरवरी को जिन्होंने अपना वोट डाला था, पहले इन्होंने वोट चोरी करके चोरों को पकड़ा दिया। अब वही चोर इस वक्त परेशान है, वो डरे हुए हैं और अपने खौफ में लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं कि किसी तरह लोगों की आवाज
बंद कर दी जाए। इमरान खान को क्यों बंद किया हुआ है? क्योंकि वो लोगों की आवाज है। जब आप वो कह रही हैं अले लोगों की आवाज़ बंद नहीं कर सकती, आप ये मान जाए, अब हार जाएं। अब अलीमा खां से जान के उलझा जा रहा है, उन्हें सीखपा किया जा रहा है ताकि वो इस मुल्क की तरफ, दूसरी तरफ नाज़रीन पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी के मैंडेट के चोरी के खिलाफ जदोजहद जारी रखी है। अतर मनीला के खिताब के बाद हुकूमत की चीखें बता रही हैं कि वो जो 26वीं तरमीम अदलिया को कंट्रोल करके अपने मुखालफिन को सजाएं दिलाना चाह रहे थे। सजाओं के बावजूद अवाम का ना हौसला टूट रहा है, ना हिम्मत टूट रही है, ना जद्दोजहद कम हो रही है, और हुकूमत की नाकामियों की और करप्शन की दास्तानें ज़ुबान ज़द आम होती जा रही हैं। हुकूमत को अपनी शिकस्त तस्लीम करना होगी, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को लाना होगा, इसी में मुल्क की बेहतरी है। नाज़रीन, ख्वाजा आसफ ने पाकिस्तान की अपनी ही हुकूमत पर अरबों खरबों रुपए की करप्शन के इल्जाम लगाए, शेखुपुर से साबिक वज़ीर ने लगाए, लेकिन खरबों रुपए चोरी करने वाले, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग के केस हो, चाहे शुगर माफिया हो, चाहे गंदम माफिया हो, चाहे ठेकों में हो, चाहे तरक्याती कामों में फंड हो, किसी एक शख्स को नहीं पकड़ा जा रहा। सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का गला घोटा जा रहा है, जमहूरियत का रास्ता रोका जा रहा है, मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी खत्म की जा रही है। मैं दोबारा वजीर आज़म पाकिस्तान से कहता हूं कि सैलाब ज़दगान की मदद में इंतजामिया ज़्यादा टिक टॉक पे तवज्जो दे रही है, और खुसूसन PTV के मुलाजमीन की तनख्वाहें 3 से 5 माह नहीं, उनके घर में फाके हैं, चूल्हे नहीं चल रहे। खुदारा आप वजीर आज़म पाकिस्तान है, वजीर आज़म मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान से आपने टूटे या ना टूटे, सियासी मुखालफतें होती रहती हैं, लेकिन अवाम की बुनियादी हुकूकतें, जो अफसरान आपकी खातिर मुखालफिन को कुछ नया, कल को आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। हमें यकीन है कि आप मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी लाएंगे। अचानक सूबों की बात हो रही थी, सूबे अगर तंजीमी सतहों पर अवाम की बेहतरी के लिए तो ये सूबे बढ़ने चाहिए, अचानक ये आवाज़ क्यों रोक दी गई? कहीं 27वीं तरमीम में कोई मुक्का तो नहीं हो गया? दूसरी तरफ मुस्लिम ख्वाजा हनीफ अब्बासी ने कहा, जो मुस्लिम लीग नून में रह के 40 साल से मौजे कर रहे हैं, वजारतें ले रहे हैं, उन्हें नहीं पसंद तो रिजाइन दे दे। यानी कि बादियुल नजर में वो इशारा वो ख्वाजा आसफ और दीगर ऐसे लोगों पर कर रहे हैं। और इस पर मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मुझे कहा कमर जवेद बाजवा से डील करो, नवाज शरीफ और मरियम ने, और इसी तरह इन्होंने पहले भी डील मुशर्रफ से की, फिर कमर जवेद बाजवा से की, उनको एक्सटेंशन दी, और ये इनके मुंह से जमहूरियत अच्छी नहीं लगती। जमहूरियत नहीं, हाइब्रिड निज़ाम है, और हाइब्रिड निज़ाम दोगला निज़ाम होता है, वो डिलीवर कर ही नहीं सकता। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।